Hello friends, welcome to Unacademy, that is India's largest learning platform, and welcome on this very unique channel, that is the Crack UPSC CSE. We have India's best educators available with us to guide you in your preparation. I am here to discuss with you an important series called the India's National Security, where we are looking at certain crucial topics and trying to understand their contemporary relevance. My name is Pavneet and I am an author of the Internal Security book, which is published by McGraw-Hill Education. And this is also one of the basic foundational books which is used by multiple aspirants to prepare for the internal security area for GS mains. You can join us on our Telegram channel and you can join on the community, the links of which are given in the description part in the video below. Friends, the UPSC CSE notes are now available, which include proper comprehensive coverage of topics, mind maps, timelines, including the past year questions. Also friends, there is a 20% discount subscription going on right now on the Unacademy subscription for the Plus and Iconic both. You can choose the subscription. The time period right now when this offer is available is only July 18 to 22nd. And you can use the code PAVIAS to get access to this subscription. Also friends, the CSE Assure right now is available. And you can also get 20% discount on the CSE Assure by using the code PAVIAS. Apart from that friends, a very important aspect is the GS Combat that we have, which is a test available in Hindi and English both, with 50 questions in 60 minutes to be done. The next test is available on 24th of July and it is at 11 am. Do attempt this test because we have access to the top teachers who basically make questions here in this series. And at the same time, very importantly, you can use the code PAVIAS to enroll. The link for the enrollment is given in the description box below. Friends, Unacademy is one of the largest learning platforms, which also has given 170 toppers in 2020 and 178 in 2021. We are here to help you and make sure that in 2023, your name also comes in the list. In case you require any financial assistance, feel free to contact us and you'll get 0% EMI based support. Friends, the topic that we have for discussion today is a very crucial topic called the security narrative, security fault lines and the state of India. तो दोस्तों, सिक्योरिटी नैरेटिव, सिक्योरिटी फॉल्ट लाइन, ये क्या होता है? ये बेसिकली बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको हम पढ़ते हैं एक तरीके से अपने सिक्योरिटी स्टडीज़ के टाइम पे। जब भी हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं, मैं भी जैसे प्लस कोर्स अनअकैडमी पे इंटरनल सिक्योरिटी का लेता हूँ, तो हम लोग अक्सर ये टॉपिक को बहुत केयरफुली समझते हैं और काफ़ी डिटेल में इसको लगभग हम 7 से 8 घंटे लगा के पढ़ते हैं। पर आपको इस वीडियो के तहत मैं आपको इस कॉन्सेप्ट का एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि इस टॉपिक का बेसिक एसेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी है दोस्तों, वो ये होती है कि जब भी हम किसी कंट्री को देखते हैं, हर एक कंट्री का एक कोई ना कोई एनिमी होता है। अगर हम डे टू डे लैंग्वेज में बात करें तो हम ये बोलते हैं कि भाई जैसे इंडिया का सबसे बड़ा एनिमी पाकिस्तान है, इंडिया का सबसे बड़ा एनिमी चाइना है। पर दोस्तों, जब हम इस तरीके से बात करते हैं डे टू डे लाइफ में, आपको एक चीज़ ये समझनी है बहुत ज़रूरी कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जब आप अपना मेंस का पेपर लिखते हो, उस समय आपको ये डे टू डे वाली यूसेज की लैंग्वेज नहीं लिखनी होती। और वो इसलिए नहीं लिखनी होती क्योंकि दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट जो आप जीएस में पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा कंसर्न अभी सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेके है, इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकेबुलरी होती है, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होती है। और यूपीएससी एक तरीके से आपसे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई आपने वो सब्जेक्ट्स जो जनरल स्टडीज़ के सिलेबस में लिखे हैं उनको किस तरीके से पढ़ा है, किस तरीके से आप उनको एनालाइज करते हैं, किस तरीके से आपके दिमाग में पूरी इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग है, वो ये चीज़ आपकी बेसिकली टेस्ट करता है। तो आप एक चीज़ पहले ये समझिए कि जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, विद रिस्पेक्ट टू चाइना एट्सेट्रा, बहुत कॉमनली हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से और हम बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान हमारा एनिमी है, चाइना हमारा एनिमी है। बट दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में आपको ये एनिमी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। आप जब एग्ज़ाम में, मेंस एग्ज़ाम में एक आंसर लिखते हैं, आपको एग्ज़ामिनर को ये रिफ्लेक्ट करके बताना है कि देखिए, मेरे पास एक एबिलिटी है टू टेक
अ व्यू ऑन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स दैट आर देयर इन द कंट्री। आपको उसको ये बताना है कि यू पोजेस सम काइंड ऑफ डेप्थ एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर एक सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकेबुलरी होती है। एनिमी शब्द हम नहीं प्रयोग करेंगे। अगर हम कभी सिक्योरिटी इश्यूज़ का आंसर लिख रहे हैं तो जो शब्द आप हमेशा लिखेंगे वो होता है एडवर्सरी। सो आपको ये चीज़ सबसे पहले याद रखनी है। एडवर्सरी एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम वर्ड एडवर्सरी यूज़ करते हैं, हिंदी में इसको वैरी बोला जाता है, तो एडवर्सरी और वैरी एक तरीके से दुश्मन जो है वो एक एक्सट्रीम शब्द हो जाता है। इफ़ यू राइट द वर्ड एनिमी यू अंडरस्टैंड दैट इट्स एन एक्सट्रीम वर्ड, राइट? सो वी हैव टू कम्युनिकेट द सेम एसेंस, बट वी हैव टू कम्युनिकेट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम। वी आर हियर टू पास एन एग्जाम, वी आर हियर टू क्वालिफाई एन एग्जाम। तो हम जो शब्द का प्रयोग करेंगे दोस्तों वो है एडवर्सरी। तो अब सबसे पहली चीज़ समझिए कि इंडिया के दो एडवर्सरीज हैं। पाकिस्तान एक एडवर्सरी है, चाइना एक एडवर्सरी है। सो हाउ डू वी लुक एट पाकिस्तान एंड चाइना फ्रॉम सिक्योरिटी इशूज पर्सपेक्टिव? एडवर्सरी। तो अब आपको ये वर्ड अपने दिमाग में डाल लेना है। ये वर्ड के बेसिस पे आपको पूरी की पूरी थिंकिंग अपनी डेवलप करनी है, पहली बात। अब दूसरी बात, जो भी आपके एडवर्सरीज होते हैं, अब अगर जब मैं ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ एडवर्सरीज होते हैं विच इम्प्लाई बेसिकली पाकिस्तान एट वन साइड, चाइना एट वन साइड, तो अगर मैं जनरल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों एडवर्सरी, तो ये याद रखना कि आई एम रेफरिंग टू बोथ पाकिस्तान एंड चाइना। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, मैं आपको प्रिसाइसली इन्फॉर्म करके बताऊँगा कि भाई पाकिस्तान एज एन एडवर्सरी या चाइना एज एन एडवर्सरी। बट वेन वी आर यूजिंग द टर्म जनरली, तो इट मीन्स दैट वी बेसिकली रेफर टू बोथ, दैट इज द Pakistan also and China also. Now the next important thing you have to understand here is कि दोस्तों जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी नैरेटिव्स की और सिक्योरिटी फॉल्ट लाइंस की, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये है कि बेसिकली जो भी आपका एडवर्सरी होता है ना, वो क्या करता है, वो सबसे पहले आपके कंट्री के फॉल्ट लाइंस को आइडेंटिफाई करता है। आपका एडवर्सरी होगा, जैसे इंडिया के दो एडवर्सरीज हैं पाकिस्तान और चाइना, ये क्या करेंगे, ये आपके कंट्री के फॉल्ट लाइंस को आइडेंटिफाई करेंगे। अब फॉल्ट लाइन क्या होती है? फॉल्ट लाइन बेसिकली एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो फॉल्ट लाइन होती है ये एक तरीके से आपके कंट्री के एक वीकनेस होती है, आप ये कह सकते हैं। ये वीकनेस सोशल लेवल पे भी हो सकती है, ये वीकनेस इकोनॉमिक लेवल पे भी हो सकती है, ये पॉलिटिकल लेवल पे भी हो सकती है। आपका एडवर्सरी एक वीकनेस को आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं चाइना की, पाकिस्तान की, इन दोनों को अगर इंडिया को एक तरीके से डिस्टेबलाइज करना है, इंडिया को तंग करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों ये है कि ये कहीं ना कहीं इंडिया की फॉल्ट लाइंस की स्टडी करेंगे। अब देखिए जैसे हम बात करते हैं फॉल्ट लाइंस की, तो भाई हमारे यहाँ पर फॉल्ट लाइंस एक तरीके से बहुत सारी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पर एक नॉर्थ ईस्ट की एक फॉल्ट लाइन है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में कुछ समस्याएं हुई सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, उसको ये लोग स्टडी करते हैं। तो फॉल्ट लाइंस जो होती हैं, नंबर वन हमेशा उसका स्टडी किया जाता है। तो फॉल्ट लाइन जैसा मैंने आपको बताया कि भाई नॉर्थ ईस्ट एक फॉल्ट लाइन है, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में पॉलिटिकल समस्या थी, सोशल समस्या थी, वो एक फॉल्ट लाइन है। लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म अफेक्टेड एरियाज़ जो हैं हमारे LWE एरियाज़, इनमें भी फॉल्ट लाइंस हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली LWE वाले एरियाज़ को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो फॉल्ट लाइन है दैट इज़ मोर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अगेन इन नेचर, लेस ऑफ पॉलिटिकल, मोर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक। तो हर एक जगह पर डिफरेंट टाइप्स की फॉल्ट लाइंस हैं। सिमिलरली अगर हम पैन इंडिया बात करें तो एक पैन इंडिया बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके से जो आपका एडवर्सरी होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो इंडिया के केस में, या चाइना हो इंडिया के केस में, या अमेरिका हो इंडिया के केस में, जी बिल्कुल सही सुना आपने, हम जिसको एक बहुत अपना क्लोज फ्रेंड मानते हैं,
अगर आप भारत के सिक्योरिटी इश्यूज़ का इतिहास पढ़ेंगे, जो मैंने बुक में भी एक्सप्लेन किया है, आप इस चीज़ को समझेंगे कि कई स्थानों पर अमेरिका ने बहुत कोशिशों के तहत भारत को डिस्टेबलाइज कई बार किया है। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो अमेरिका ऑल्सो इज़ एन एडवर्सरी एंड अ फ्रेंड। तभी आप देखेंगे कि जब हम अमेरिका को देखते हैं तो वी डोंट हैव दैट लेवल ऑफ ट्रस्ट विद देम दैट वी कुड प्रोबेबली हैव विद एनीबडी एल्स, लाइक लेट्स से फ्रांस। क्योंकि फ्रांस अगर है तो वो जेन्युइन फ्रेंड है, लेकिन अमेरिका जो है वो एडवर्सरी एंड फ्रेंड दोनों का रोल प्ले करता है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि आपके जितने भी एडवर्सरीज हैं ये आपके कंट्री के फॉल्ट लाइंस को एनालाइज करते हैं, उसके कंट्री के, आपके कंट्री के प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं। अब आपको ये समझ में एक चीज़ दिमाग में आपके, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि आई होगी कि भाई कोई एडवर्सरी फॉल्ट लाइन आइडेंटिफाई कैसे करता है। तो ये लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जब भी आपके कंट्री में कोई फॉल्ट लाइन को एनालाइज करना होता है तो ये बेसिकली अपने कन्वीनियंस को देखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि चाइना जैसी कंट्री है। चाइना एक हिस्टोरिकल पुरानी 5000 साल पुरानी कंट्री है। चाइना क्या करेगी कि जब उसको कभी फॉल्ट लाइन को इंडिया के एनालाइज करना होगा तो वो अपना दिमाग एक हिस्टोरिकल नज़रिए से लगाएगी। वो ये चीज़ देखेगी कि भाई हिस्टोरिकली इंडिया में क्या क्या समस्याएं थीं और क्या वो समस्याएं जो हिस्टोरिकली इंडिया में थीं अभी तक चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो चाइना क्या करेगा, चाइना हर चीज़ को एक हिस्टोरिकल लेंस से देखेगा। तो चाइना ये चीज़ जानने की कोशिश करेगा कि हिस्टोरिकली जैसे इंडिया में प्रॉब्लम्स थी, फॉर एग्जांपल जैसे पिछड़े वर्ग थे इंडिया में, उनका हिस्टोरिकली इंडिया में सप्रेशन हुआ, उन पिछड़े वर्गों को बहुत इनजस्टिस झेलना पड़ा। तो चाइना क्या करेगा, वो ये देखेगा कि भाई जो इंडिया में पोस्ट 1947 जब से कॉन्स्टिट्यूशनल सरकारें बनी इंडिया में, जब से कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्पिरिट आया पूरे कंट्री को डोमिनेट करने के लिए, तो क्या उस पीरियड के दौरान इंडिया ने सक्सेसफुली इन पिछड़े वर्गों को जिनके ऊपर हिस्टोरिकल सप्रेशन हो रहा था, क्या इनकी सप्रेशन को मिटिगेट करने के लिए पॉजिटिवली काम किया या नहीं किया। क्या इन पिछड़े वर्गों का एक तरीके से अगर पॉजिटिवली काम इंडिया पूरा इफेक्टिवली नहीं कर पाई तो क्या इंडिया की स्ट्रैटेजी में कुछ कमी रह गई। तो ये लोग क्या करेंगे, चाइनीज़, आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि चाइनीज़ एक हिस्टोरिकल लेंस के थ्रू देखेंगे। तो चाइनीज़ क्या करेंगे, एक हिस्टोरिकल चश्मा पहन लेंगे इस तरीके का। क्यों, क्योंकि हर कंट्री की स्थिति वैसी होती है। दूसरी, अब आप पाकिस्तान को एक मिनट के लिए सोचिए। देखिए पाकिस्तान एज अ कंट्री क्या है, पाकिस्तान एज अ कंट्री तो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था इंडिपेंडेंटली। ये तो कोई टेरिटरी ऐसी थी ही नहीं पहले, ये तो एक आइडिया था, आइडिया से टेरिटरी बन गई। तो दोस्तों यहाँ पर दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान एक सोच थी, एक पीस ऑफ लैंड नहीं था। जैसे ज्यूज़ के लिए एक पीस ऑफ लैंड था इज़राइल, इस तरीके से पाकिस्तान के लिए कभी भी एक टेरिटरी उसके हाथ में हिस्टोरिकली नहीं थी। दे वर पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। वो एक मन में आइडिया था। अब वो जो मन का आइडिया था उसके साथ क्या हुआ कि वो मन का आइडिया इवेंचुअली जो है टेरिटरी में मैनिफेस्ट किया। अब देखिए, जब आप एक मन के आइडिया को एक टेरिटरी में मैनिफेस्ट करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो आपके मन का आइडिया था, क्या वो मन का आइडिया एक्चुअल टेरिटरी में बना या नहीं बना। अब सोच के देखिए कि पाकिस्तान के मन में एक आइडिया था कि नहीं भाई, हमें तो कश्मीर जो है वो भी हमारा हिस्सा होना चाहिए, लेकिन जब वो पाकिस्तान की टेरिटरी इवेंचुअली क्रिएट हुई तो उसके मन का ये जो थॉट था कश्मीर को लेके, वो जनरली ग्राउंड पे मैनिफेस्ट नहीं हुआ क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान को नहीं मिला। तो अब समस्या क्या थी इस केस में। अब आप एक चीज़ ये समझेंगे कि पाकिस्तान का नज़रिया किसी देश को देखने के लिए, खास करके इंडिया को देखने के लिए, कोई हिस्टोरिकल लेंस नहीं होगा। अब आप एक चीज़ ये देखिए कि पाकिस्तान जैसा देश, वो हमेशा इंडिया को, अगर इंडिया की फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करना चाहेगा या स्टडी करना चाहेगा, वो उसको हमेशा एक आइडेंटिटी के लेंस से देखेगा, क्योंकि उसको खुद भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो वो क्या करेगा, हिस्टोरिकल लेंस नहीं अपनाएगा चाइना की तरह, आइडेंटिटी लेंस अपनाएगा। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि अगर चाइना एक आइडेंटिटी का लेंस अपनाएगा उस केस में क्या होगा। उस केस में एक चीज़ तो पाकिस्तान अगर आइडेंटिटी का लेंस अपनाएगा तो उस केस में एक चीज़ तय है,
उस केस में ये चीज़ तय है कि पाकिस्तान इंडिया में आइडेंटिटी बेस्ड फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करेगा। अब आप समझिए, उसने जो पूरा कश्मीर का फॉल्ट लाइन एक्सप्लॉइट किया पाकिस्तान ने, वहाँ पर उसने कश्मीरी आइडेंटिटी पे गेम बनाया कि भाई कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा ही नहीं है, कि उसका तो आइडेंटिटी ही अलग है। इसी नज़रिए से अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने यही आइडेंटिटी का गेम पंजाब में खेला, जहाँ पर पूरा उसने वो खालिस्तान का कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअलाइज किया कि भाई खालिस्तान जो है एक ऐसी टेरिटरी है जहाँ पर सिर्फ सिखों का एक जमावड़ा होगा, क्योंकि सिखों की आइडेंटिटी अलग है पूरे हिंदुस्तान की आइडेंटिटी से। तो आप ध्यान से बच्चे ये चीज़ को समझो कि पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो या भारत का कोई भी एडवर्सरी हो, अगर वो फॉल्ट लाइन बनाएगा तो वो फॉल्ट लाइन आपकी हमेशा हमेशा फॉल्ट लाइन अपने एक खुद के लेंस के थ्रू बनाएगा। चाइना का लेंस हमने देख लिया, पाकिस्तान का लेंस हमने देख लिया। अमेरिकन्स क्या हैं भाई? अमेरिकन्स एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड के बहुत बड़े सुपर पावर हैं, पैसा ही पैसा है उनके पास, तो उनको तो कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है जीवन में। तो अमेरिकन्स का लेंस क्या होगा? हर चीज़ में इकोनॉमिक लेंस लगाएंगे वो। अब अमेरिका ने क्या कर रखा था, एक समय पर उसने पाकिस्तान के साथ अलायंस कर रखा था। तो क्या होता था कि भाई पाकिस्तान अगर मान लीजिए कि भारत की कोई फॉल्ट लाइन उठाता था, जैसे उसने पंजाब उठाई, उसने बोला कि भाई पंजाब में ये जो सिख रहते हैं इनका तो आइडेंटिटी भारत के लोगों से तो मिलता ही नहीं है। अब पाकिस्तान को अगर ये आइडेंटिटी को एक्सप्लॉइट करना था भारत में सिखों की, जो उसने किया एक पॉइंट पे, जिसमें खालिस्तान का पूरा टेररिज्म हमें देखने को मिला, उस पूरे फॉल्ट लाइन को सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए, नर्चर करने के लिए पैसा चाहिए ना। पैसा कहाँ से आएगा? वो आएगा यूएस से। तो यूएस अपना किस नज़रिए से देख रहा है भाई? एक कैपिटलिस्ट लेंस से देख रहा है। भाई यूएस का तो कोई बहुत बड़ा इतिहास तो है नहीं, चाय की वो कनैतियाँ फेंक के ये तो देश बना है। तो इन लोगों का कोई इतना हमारे जैसा पुराना सिंधु घाटी सिविलाइजेशन वाला तो कोई एक तरीके से इतिहास है नहीं इनका। तो यहाँ पर चीज़ को समझिए कि यहाँ पर अमेरिका हमेशा इकोनॉमिक नज़रिए से देखेगा। अमेरिका ये देखेगा कि अच्छा भाई मेरा तुम दोस्त हो, तुमने एक ये फॉल्ट लाइन भारत के खिलाफ आइडेंटिफाई किया है, मुझे लगता है ये फॉल्ट लाइन अच्छा है, इसको मैं सपोर्ट करूँगा पैसा इसको देके। पूरे खालिस्तान टेररिज्म के दौरान अमेरिका जो है पाकिस्तान को फंडिंग करता था, पाकिस्तान वो पैसा यहाँ भारत में लगाकर पूरा खालिस्तान का गेम चलाया, पूरा कश्मीर का गेम चलाया। उसी तरीके से चाइना ने हिस्टोरिकल नज़रिए को अपनाया, पूरे नॉर्थ ईस्ट में गेम चलाया। पाकिस्तान ने, चाइना ने, अमेरिका ने, तीनों ने मिलकर पूरा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का गेम चलाया। तो आपका एडवर्सरी क्या कर रहा है दोस्तों? फॉल्ट लाइन पकड़ रहा है, फॉल्ट लाइन पकड़ के फॉल्ट लाइन को आइडेंटिफाई कर रहा है और फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर बच्चे क्या आती है कि ये जो फॉल्ट लाइन आइडेंटिफाई कर ली, इस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे? इसको एक्सप्लॉइट करते हैं नैरेटिव बना के। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, नैरेटिव। नैरेटिव का क्या मतलब है दोस्तों? नैरेटिव का मतलब होता है कि आप एक स्टोरी बनाएंगे। नैरेटिव आता है एक नरेटर से। मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं एक नरेटर हूँ, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, एक स्टोरी सुना रहा हूँ और उस स्टोरी में आपको कंटेंट दे रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ जिससे एग्ज़ाम पास होगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है। तो आपको एक नरेटर होगा। अब अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में नरेटर किसको कहेंगे हम? कोई आदमी तो है नहीं, कंट्रीज़ हैं। तो कंट्रीज़ आर नरेटर्स। और ये क्या करेंगे? ये नरेटिव बनाएंगे। ये नरेटिव कैसे बनाएंगे? नरेटिव क्या होता है? एक स्टोरी होती है। तो ये क्या करते हैं दोस्तों कि पहले एक फॉल्ट लाइन पकड़ते हैं, फिर वो फॉल्ट लाइन पकड़ के उस फॉल्ट लाइन पे एक नरेटिव बनाते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? फॉल्ट लाइन पकड़ के उस फॉल्ट लाइन पे एक नरेटिव बनाया जाता है। तो नरेटिव का मतलब ये हुआ कि भाई अब आपने एक फॉल्ट लाइन पकड़ ली, अब उसके ऊपर अब आप एक पूरी स्टोरी बनाइए। और स्टोरी बनाने के समय स्टोरी ऐसी बनाइए कि अगर वो स्टोरी फैक्चुअली इनकरेक्ट भी होती है, उसके बावजूद भी आपको इस कॉन्फिडेंस से पेश की जाए कि मतलब वो जो कहानी है उसमें भी आपको लगे कि यार वाह क्या सीन है,
तो आप समझिए यहाँ पर, तो जो नरेटर होता है विच इज़ अ कंट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी इशूज दैट वी आर लुकिंग एट, ये कंट्री आपकी फॉल्ट लाइन पे एक स्टोरी बनाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये स्टोरी आपको इस तरीके से सुनाएगा आपके लोगों को उस इलाके में जहाँ पर भी ये फॉल्ट लाइन होगी, कि उस इलाके के लोगों को ये चीज़ का विश्वास हो जाएगा कि नहीं भाई ये जो बोल रहा है ये सच है। तो जितना भी जैसे आप देखते हैं कि मोस्टली ये जो बाबा जी टाइप लोग होते हैं, इनका काम ही यही होता है कि कुछ भी बोल देंगे, कोई इरेलीवेंट चीज़ बोल देंगे, लेकिन आपके मन में एक श्रद्धा के तहत उस चीज़ का अब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी सुपर बढ़ जाएगा कि नहीं भाई इस प्यार से इस तरीके से सुना दिया कि हाँ जो ये है वो सच है। तो नरेटिव में याद रखिएगा दोस्तों, नरेटिव में सारा गेम है स्टोरी का। तो यहाँ पर जो कंट्री है ना आपकी, जो नरेटर है वो स्टोरी टेलर है, और वो स्टोरी इस तरीके से डिज़ाइन करता है कि आपके दिमाग के न्यूरल इम्पल्सेस इस तरीके से अफेक्ट हों कि आपको वो स्टोरी अपनी लगे। तो फॉल्ट लाइन एंड नरेटिव गो हैंड इन हैंड, आप समझ रहे हैं बेटा। तो कोई भी एडवर्सरी अगर स्टेट ऑफ इंडिया को कभी भी डिस्टेबलाइज करना चाहता है, तो दैट एडवर्सरी विल ऑलवेज क्रिएट अ नरेटिव, and that adversary will use the narrative to exploit the fault line। तो क्या प्रोसेस है भाई दोस्तों, पहला होगा एक एडवर्सरी, ये क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा एक आपकी फॉल्ट लाइन, फिर ये फॉल्ट लाइन को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेगा वो, कि वो इसके खिलाफ इसको सपोर्ट करके डिस्टेबलाइज करके आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए एक नरेटिव डिज़ाइन करेगा। तो फर्स्ट इज योर एडवर्सरी। Adversary will identify a fault line. Once he or she has identified a fault line, they will then create a narrative, which is a story. And then they will make the story so compelling that in this context, the story will appear to you as if it is the truth for you. तो यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है, एक माइंड गेम है जो कंट्रीज़ खेलती हैं। तो जब ये पूरा खालिस्तान का मूवमेंट चला तो लोगों में ये विश्वास जताया गया कि भाई खालिस्तान का एक नेसेसिटी है। जब ये नॉर्थ ईस्ट में गेम चला, वहाँ पर सिसेशनिज़म प्रमोट किया गया, तो वहाँ पर एक पूरा थॉट प्रोसेस लगाया गया कि नहीं भाई सिसेशनिज़म एक नेसेसिटी है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का फॉल्ट लाइन बनाया गया, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज़ में लोगों को ये बताया गया कि भाई भारत सरकार हमारी एनिमी है। कश्मीर में लोगों को एक आइडेंटिटी के बेसिस पे बताया गया कि भाई तुम्हारी आइडेंटिटी बाकी हिंदुस्तान की आइडेंटिटी से अलग है, तुम लोग साथ रह ही नहीं सकते। तो ये पूरा एक थॉट प्रोसेस बेटा, जब हम सिक्योरिटी इश्यूज पढ़ते हैं तो आपको ये थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि हु इज़ योर एडवर्सरी, व्हाट इज़ द फॉल्ट लाइन दे हैव पिक्ड अप एंड व्हाट इज़ द नैरेटिव दैट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट टू एक्सप्लॉइट दैट फॉल्ट लाइन। बिकॉज any security problem that you have today, any security challenge that you have as a country today, whether that challenge is communal challenge, whether that challenge is radicalization challenge, whether that challenge is a mega area based approach challenge like the one we have seen in Kashmir, in Northeast, in left wing extremist affected areas, in Punjab in case of India, they are all fault lines which our adversaries have studied, they have nurtured, and they have exploited those fault lines through well-designed, well-crafted narratives. So this is what the video is all about. तो आई होप आपको दोस्तों इस वीडियो से ये बेसिक ग्लिम्स मिल गया कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। बाकी दोस्तों लेजेंड विजडम सीरीज़ करके एक स्टार्ट हुई है अभी अनअकैडमी पे 20 जुलाई से, इसमें मैं भी एक हैबिट्स के ऊपर चर्चा ले रहा हूँ। इस सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए, एनरोलमेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 21 जुलाई से हमारे बैचेस जीएस के स्टार्ट हो रहे हैं, इंग्लिश और बाइलिंगुअल वाले दोनों। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको जो मैं एक बेसिक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा था एडवर्सरी, फॉल्ट लाइन एंड सिक्योरिटी नैरेटिव की, वो चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू।